Hello, all the students. Welcome once again to ACE CAT. And today we are going to have a live streaming where we are going to discuss about critical reasoning once again. Last week also, students, I took a session on critical reasoning where I focused on understanding and explaining to you people what is the importance of critical reasoning. I do understand CAT में critical reasoning के कितने number of questions आते हैं उससे भी ज़्यादा important है. The concepts of critical reasoning will actually help you a lot in mastering reading comprehension also. Students, मैं जानता हूं कि VRC को लेकर a great number of students we don't have that confidence basically while marking the answers to the various RC questions. Among the four options, though we are able to identify these two are not the correct answers, but बचे हुए दो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर देना many times we commit a mistake there. So how to overcome that? And that is the reason when we discuss critical reasoning, this will actually help you in overcoming that problem also. हम स्टूडेंट्स कई बार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस अब सॉल्व करते हैं तो हम चीज़ों को बहुत पॉजिटिव सेंस में लेते हैं. भला से हम चीज़ों को बहुत पॉजिटिव सेंस में लेते हैं. आई मीन टू से दैट we actually accept the options easily and straightforwardly. What is more important is you people have to become a bit critical before you mark the answer. So you don't tend to accept the options. You always try to reject the options. And don't ask a question why this option has to be chosen. Rather, ask a question why this option should be rejected. And जिस option को students हम reject न कर पाएं, eventually that becomes the correct answer. And among the four options, जब हम दो options को eliminate कर पाते हैं तो बचे हुए दो options को बहुत minutely observe करना, compare करना and then to find out the correct answer. So that is the crux to success in reading comprehension. और इसके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर सेटर्स ट्रैप. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स एक पेपर सेटर कैसे स्टूडेंट्स को इंट्रैप करता है, कैसे ऑप्शंस में वो माइनर चेंजेस करता है, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो एनीवे, तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपको स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करेगा कैसे ऑप्शंस को कंपेयर करना. क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है वेयर सम स्मॉल पैराग्राफ्स आर गिवन टू अस and one question is based on that. ये बेसिकली एक तरह से शॉर्ट पैरा क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल वैरायटीज के हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अजम्पशन, अंडरस्टैंड. वैसे अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास को देखा है स्टूडेंट्स, तो आई बिलीव दैट बहुत इजीली यू पीपल कैन अंडरस्टैंड what kind of questions actually come in critical reasoning and what approach we will have to keep in mind. I believe that, and I assume that all the students are watching this session. The people have watched my first one. मेरे पहले सेशन को जरूर देखना और उसके बाद आज जो तीन क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, ये तीनों क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करना. स्टूडेंट्स, you will love it. The way the people are getting the correct answer and the kind of depth which is needed to address any question. So students, let us have a quick summary. So when we talk about critical reasoning, the kind of questions which generally come, questions are based on assumption. Students, मैंने अपने पहले वीडियो में इस पर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है assumption. And when I talk about assumption, you people will have to understand one thing. Whatever we people do, there is always an assumption behind it. And किसी भी critical reasoning के argument में या फिर उस paragraph में, there are two things. One is the premise and second is the conclusion. And students, on the basis of a given premise, whenever we draw any conclusion, there is always some assumption which is there in the mind. और वो जो assumption है students, that is not stated, but that is always there. मैं किसी भी sentence को ले लूँ बिना assumption के students, we will not be able to say any sentence, we will not be able to make any sentence, and whatever decisions we people take and whatever conclusions we people draw, हर कंक्लूजन के पीछे कोई ना कोई assumption जरूर होता है. एनीवे स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने फर्स्ट वीडियो में लिए थे. आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू वॉच दैट. यू विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट इज एन assumption. और कई बार स्टूडेंट्स हमारे assumption सब गलत होते हैं, तो किस तरह से हमारे आंसर्स भी गलत होते हैं. इसीलिए सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द assumption. Whatever the author has written in the paragraph, you need to catch when the author recommends this, possibly उसके पीछे का assumption क्या होगा. ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स कुछ और कॉमन क्वेश्चंस जो आप देखोगे CAT
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में भी these common questions we commonly see. Questions like which option strengthens the author's argument? Which among the four options, if true, weakens the author's argument? ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये कॉमनली क्रिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं. बट नाउअडेज वी सी दैट कैट में भी स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Conclusions and inference. So sometimes we people will have to draw an inference or a conclusion on the basis of the content which is given in the passage. तो कई बार स्टूडेंट्स we need to do that also. And कई बार स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं where you will have to eventually find out among the four options the answer to which particular question. हो सकता है हम चारों ऑप्शंस में क्वेश्चंस ही हों और आपसे पूछा जाए the answer to which particular question will actually help us to test the strength of the argument. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. और कई बार स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजनिंग में you will see like some apparent paradox can be there. हो सकता है किसी पैराग्राफ में कोई विरोधाभासी कंडीशन हो सकती है और स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता है कि वो जो अपरेंट पैराडॉक्स है उसका सबसे बेस्ट लॉजिक क्या होगा. अल्टीमेटली अमंग द फोर ऑप्शंस वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट लॉजिक फॉर दैट. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में. तो वी आर गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. दिस क्वेश्चन वाज टेकन इन द लास्ट क्लास आल्सो बट आई डिड नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो आज अपन इसको डिस्कस करेंगे. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द सेशन नाउ, I urge all the students, आप आराम से इसको पॉज करो, go through the question once, figure out what is the correct answer, and then listen to my explanation. Okay? चलिए, so students, let us take the first question. जितने भी students live हैं, वो इसे मेरे साथ सॉल्व करेंगे और जो भी students बाद में इसको recorded format में देखेंगे, please ensure that आप पॉज करके सबसे पहले इसका आंसर खुद निकालें. And I must tell all the students, it is always advisable to read the question first before you go through the paragraph. अब क्वेश्चन कहता क्या स्टूडेंट समझो. Which of the following if true most seriously weakens the conclusion drawn above? So students, the question is which of the following if true most seriously weakens the conclusion drawn above? Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपन पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Okay, coming on the first paragraph, the paragraph which is given. Anyway, there is only one paragraph. Opponents of laws that require automobile drivers and passengers to wear seat belts argue that in a free society, people have the rights to take risk as long as people do not harm others as a result of taking the risk. As a result, they conclude that it should be each person's decision whether or not to wear a seat belt. अब स्टूडेंट्स आप देखो ये जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया. ओके, यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक हियर. सबसे पहले तो व्हाट द पैराग्राफ सेज, एक बार इसको समझते हैं एंड देन स्टूडेंट्स मैं आपको मौका दूंगा ऑप्शंस में से आंसर देने का. एक बार इस पैराग्राफ को थोड़ा सा डिकोड करो मेरे साथ. सीट बेल्ट इज कंपल्सरी इन इंडिया ऑल्सो एंड पॉसिबली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी सच पीपल जो अपोज करते हैं ऐसे मैंडेटरी लॉज को. एंड ये जो अपोनेंट्स हैं उनका आर्गुमेंट क्या है? दे से दैट व्हेन वी आर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स वी आर टेकिंग रिस्क एंड वी लिव इन अ फ्री सोसाइटी, सो वी शुड हैव द राइट्स टू टेक वी शुड हैव द राइट टू टेक अ रिस्क. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई रिपीट माय पॉइंट. Opponents of such laws, they argue by saying that when we people are not wearing seat belts, we are actually taking risk. And we live in a free society, so we should have the right to take the risk as far as we are not hurting others. अब अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहनता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जो भी नुकसान होगा वो मुझे होगा. अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई इंजरी होती है तो मुझे होगी. अंडरस्टैंड. बट हम लोग एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड हैव द राइट टू टेक अ रिस्क ऑल्सो as far as we are not hurting others. And therefore, these opponents, they conclude that we should have freedom either to wear seat belts or not. This is what the paragraph talks about. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ऐसे ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है तो इस कंक्लूजन को वीकन करें. ओके, तो चलो स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग जो भी लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं. if the people can connect with me and try to give the answer to this question. कल भी स्टूडेंट्स हम लोग इसी टाइम 12:15 बजे वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट लाइव सेशन. और मेरे साथ स्टूडेंट्स आप थोड़े दिन
वीआरसी पढ़कर देखो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वीआरसी को लेकर जो डर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा एंड आपके अंदर एक बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। एनीवे स्टूडेंट्स, लाइव वाले कोई भी स्टूडेंट अगर आंसर देना चाहता है टू दिस क्वेश्चन तो प्लीज गिव। एंड जितने भी स्टूडेंट्स बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर दैट यू थिंक अबाउट द आंसर फर्स्ट। एक बार आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना, उसके बाद तो स्टूडेंट्स द गेम इज ओवर। आई वांट एवरीवन टू डिसाइड व्हाट इज योर आंसर। ओके, यस, एनी आंसर प्लीज। क्या लगता है, एनी आंसर? चलिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Which of the following gives most seriously weakens the conclusion drawn above? चलो पढ़ना स्टार्ट करें। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कई बार लिया है और मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे यहां पर आंसर मार्क करते हैं फोर्थ ऑप्शन। They say that fourth is the correct answer because in automobile accidents, a greater number of passengers who do not wear seat belts are injured than the passengers who do wear seat belts. तो फोर्थ ऑप्शन कहता है कि जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं उन्हें इंजरी ज्यादा होती है rather than the people जो सीट बेल्ट पहनते हैं। चलो, there is one answer which I have got. Okay, Avinash, I will just find out. Okay, चलो anyway, अगर ऐसा है तो I will find out from अंकित सर कि उन्होंने कौन कौन से सेशंस को टिकट फ्री फॉर ऑल कर रखा है, और अगर कुछ प्राइवेट होगा और हमारी पॉलिसी में अगर वो सेट होगा हम उसको फ्री में कर देंगे। बट अदरवाइज मैं सभी स्टूडेंट्स को अर्ज करता हूँ, देखो फ्री के कंटेंट के अपने लिमिटेशंस हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इफ यू आर सीरियस कैट एस्पिरेंट, become the part of the complete course. Once you become the part of the course, it becomes our duty and our liability to ensure that improvement comes with you. तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं तो हमेशा अर्ज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, फ्री का कंटेंट भी हमने काफ़ी दे रखा है, डेफिनेटली आप लोग उसे यूज़ करो, बट एट द सेम टाइम अगर आप फुल फ्लेजेडली बैच का हिस्सा बनोगे तो आप इस कैट को एक्चुअल सेंस में एक्सपीरियंस कर पाओगे। एनीवे, अपन फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स, द पीपल हु डू नॉट वियर सीट बेल्ट्स, ओके, उनके साथ जब भी कोई एक्सीडेंट होता है द चांसेस ऑफ इंजरी विल ऑलवेज बी मोर विद देम। एग्रीड, चलो मान भी लेते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले को इंजरी ज्यादा होती है, बट दैट इज व्हाट दीज पीपल से। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? ये लोग यही तो कहते हैं कि अगर इंजरी होती है तो हमें होती है ना, तो वी आर टेकिंग रिस्क एंड वी लिव इन अ फ्री सोसाइटी, वी आर नॉट हर्टिंग अदर्स, so why don't you allow us to take the risk? You people do understand. Fourth option is not the correct answer here because मेरा argument ही यही है कि भाई अगर इंजरी होती है तो मुझे होती है ना, what is the problem? Am I hurting others? No, so just allow us. इसीलिए स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन तो सिर्फ ये कहता है कि जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं उन्हें इंजरीज ज्यादा होती है, बट दीज पीपल आर एनीवे रेडी टू टेक द रिस्क। So fourth option does not weaken the argument here. Students, you people will have to catch. Ultimately वो जो argument है वो किस पर based है? Students, अगर आप सभी options को compare करोगे तो before you give the correct answer, एक छोटा सा point, okay, which I want you people should note, and what is that? As long as the people do not harm others as a result of taking the risk, इसमें सबसे important point यही है कि रिस्क लेने वाला, सीट बेल्ट नहीं पहनने वाला या मैंडेटरी लॉज को अपोज करने वाला, वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि भाई एज फार एज वी आर नॉट हर्टिंग अदर्स, व्हाई डोंट यू अलाउ अस टू टेक द रिस्क? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो अब मुझे अगर इस आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो व्हाट आई विल हैव टू डू, मुझे एक ऐसा ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा जो ये प्रूव करता है कि व्हेन यू डोंट वियर सीट बेल्ट्स यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि तुम्हारे सीट बेल्ट नहीं पहनने से यू एक्चुअली हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स वो वीकन हो जाएगा। एंड व्हेन द आर्ग्यूमेंट गेट्स वीकन तो कंक्लूजन तो अपने आप वीकन हो ही जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। एंड व्हाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई विल टेल यू। Automobile insurance rates for all automobile owners are higher because of the need to pay for the increased injuries or deaths of people
not wearing seat belts. अब देखो स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन क्या प्रूव करता है? सेकेंड ऑप्शन कहता है कि when people don't wear seat belts तो उन्हें इंजरी ज़्यादा होती है, कैजुअलिटीज भी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा क्लेम्स पास करने पड़ते हैं, और इसी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। अब जब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं तो वो लोग जो सीट बेल्ट पहनते हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, द पीपल हु आर वियरिंग सीट बेल्ट्स इवन दे विल हैव टू पे higher premiums because of the people who are not wearing seat belts, isn't it? भाई आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो इसकी वजह से व्हाट हैपन्स? कैजुअलिटीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा क्लेम पास करना पड़ता है, तो प्रीमियम्स की रेट बढ़ जाती है। तो बेचारे वो लोग जो सीट बेल्ट पहनते हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसका मतलब है तुम्हारे सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से, इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, इट इज नॉट करेक्ट। यू आर एक्चुअली हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, एंड दिस इज व्हाट द सेकंड ऑप्शन सेज। इसीलिए ज़्यादा बातें मत करो, चुपचाप सीट बेल्ट पहनो, ये सेकंड ऑप्शन कहता है। तो सेकंड ऑप्शन कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि बाय नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट यू आर हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, एंड दैट इज व्हाट द बेसिस ऑफ माय आर्ग्यूमेंट वाज कि मैं जब दूसरों के इंटरेस्ट हर्ट ही नहीं करता हूँ, व्हाई डोंट यू अलाउ अस टू टेक द रिस्क? सेकंड ऑप्शन प्रूव करता है कि तुम इंटरेस्ट हर्ट करते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर हियर इज सेकंड ऑप्शन। ओके, इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो सब गलत है। चलो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। Many new cars are built with the seat belts that automatically fasten when someone sits in the front seat. ठीक है, आपने उसको मैंडेटरी कर दिया टेक्नोलॉजी को यूज करके, बट दैट इज ओके। अगर आपने उसको टेक्नोलॉजी यूज करके भी मैंडेटरी किया, फिर भी मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट तो स्टूडेंट्स वीकन होता ही नहीं है ना। ठीक है, आपने भले उसको टेक्नोलॉजी से मैंडेटरी कर दिया, बट फिर भी मेरा आर्ग्यूमेंट तो अभी भी इट स्टैंड्स देयर। मेरा आर्ग्यूमेंट तो अभी भी वही है, वी आर नॉट हर्टिंग अदर्स, अलाउ अस टू टेक द रिस्क। इसीलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज नॉट वीकनिंग, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सी द रेट ऑफ ऑटोमोबाइल फैटलिटीज in states that do not have mandatory seatbelt laws is greater than the rate of fatalities in states that do have such laws. चलो मान भी लेते हैं कि जहां पर मैंडेटरी लॉज नहीं है वहां पर फैटलिटीज ज्यादा होती है, कैजुअलिटीज ज्यादा होती है, बट स्टिल दिस पीपल आर रेडी टू टेक द रिस्क। ये यही तो कहते हैं, अगर होती है तो हमें होती है, हम दूसरों को थोड़ी हट कर रहे हैं। इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आर्गुमेंट को वीकर नहीं करता। देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज द सेकंड वन। So this becomes a typical example of critical reasoning. अब आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर इस लेवल पर you people start comparing all the options and start giving the answers, what is going to happen? And see the level of improvement which you are going to have done. So this is how you will have to think eventually. Okay? चलिए, coming on students, the second question. But second question लेने के पहले कुछ बहुत important announcement. Students, June 14 has come and कल से ACAT की जो much awaited test series है, One CAT series for CAT 2025, that we are going to begin with. I urge all the students, आपके preparation का level चाहे कुछ भी हो, don't miss the very first test, which is an open mock for each and every one. तो वैसे भी students, इस पूरी test series में there are two packages which we are offering. One at a price of 1499, in which 10 mock CATs will be there, and 2 mocks for all the units. And then students, one you will have, which is a 1999 wala package, in which you are going to have 20, okay, win cats, 20 win snaps, 20 win cats, and 5 win snaps, 5 win zats, 5 win C mats, and 5 students win N mats. Or students, सबसे important, ये जो 20 win cats you people are going to get, ये 20 के 20 win cats में the solutions will be video solutions. मैं जानता हूँ स्पेशली क्वांट में और स्पेशली DILR में जब वीडियो सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से चीज़ों को समझना मे नॉट बी इजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो सॉल्यूशंस आपके हमारी जो रेगुलर फैकल्टीज हैं, टीम मेंबर्स हैं, उन्हीं के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग फॉर यू पीपल। एनीवन, आपने चाहे कहीं भी एनरोल कर रखा हो, आई अर्ज एवरीवन, यस प्लीज इंश्योर दैट you become the part of ACAT's mock test series, which we are going to start this June 14. और कल वाला टेस्ट तो देना ही है सभी को। And on the basis of this, we are also offering very good scholarships. In case students
If you people are getting 100 plus marks, so 90% off, 80 plus marks पर 60% off, 60 plus पर 30% and 50 plus पर 20%. और ये जो scholarship है, this will be available on all the courses of ACE-CAT. तो CAT 2025 का मिशन IIM पॉसिबल बैच या फिर स्टूडेंट्स आप टेस्ट सीरीज कुछ भी लेंगे, तो इसीलिए फर्स्ट मॉक को आप मिस मत करना. इट एक्चुअली बिकम्स द फर्स्ट मॉक along with a scholarship test. Okay, to win CAT series, this is very important to win CAT 2025. चलिए अब स्टूडेंट्स अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अब दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड वन, हालांकि ये उतना टफ नहीं है. आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. पर इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लूंगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रियल जेम. The Committee on Sexual Discrimination in the Workplace has highlighted Supremo Company as a chief offender. Of the 20 senior executives in the firm, only one is a woman, and of the 40 junior executives, only 5 are female. The Supremo could best defend itself against the charges by showing that. अब students आप देखो Supremo Company के against कुछ charges लगे हैं. If this company has bias against females, against women, and you people see उस bias को establish करने के लिए, okay, the author says that of the 20 senior executives in the firm, only one is woman, and of the 40 junior executives, only 5. So that itself is sufficient to establish the bias. But अब Supremo Company को defend करना है इन charges को, तो बताओ students कौन सा option उसे best defense देगा? So that becomes the question. Any answer to this question? Yes, come on everyone. I'll give the answer now. सबसे पहला ऑप्शन है मेल एंड फीमेल एग्जीक्यूटिव्स एट द सेम लेवल हैव द सेम क्वालिफिकेशन. Even if students first option is there, that is not going to defend the company. Because ये कहना कि मेल फीमेल सबके क्वालिफिकेशन सेम है, सेम पोजीशन में, so what? बट नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा क्यों है? क्यों नंबर ऑफ फीमेल्स बहुत कम है? तो इसे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन कहीं पर भी डिफेंड नहीं करता, इसलिए फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर. सेकेंड, 10 times more men than women apply for jobs with the company. अब स्टूडेंट्स हो सकता है कई सारे बच्चे सेकेंड ऑप्शन को मार्क करें कि सर कंपनी क्या करे कि जब नंबर ऑफ मेन ही बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वुमेन बहुत कम अप्लाई करती है, तो 10 times more men than women apply for jobs with the company. Now you people try to understand, even if this is the case, it cannot justify that out of 20 there is only one woman and out of 40 there are only 5. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देता है कि कंपनी में जो फीमेल के अगेंस्ट जो बायस है दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी, इसीलिए बहुत सारे वुमेन अप्लाई ही नहीं करते हैं कंपनी में. अब आप सोचो स्टूडेंट, ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये कंपनी को डिफेंस कम दे रहा है और कंपनी के अगेंस्ट चार्जेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है. You see, 10 times more men are applying. What does it show? It shows that people anyway know that this company is not going to select the women. So possibly women are not applying because of that, isn't it? But इसीलिए students, even second option cannot be the correct answer. Second option company को difference कम देता है और company के against charges को ज़्यादा strengthen करता है. Coming on the third option, the work pressures and long hours make jobs with the company unattractive to married women. अब स्टूडेंट्स ये भी कहीं ना कहीं व्हेन इट सेज दैट इट बिकम्स अनअट्रैक्टिव टू मैरिड वुमेन, चलो मान भी लेते हैं, बट कम से कम जो अनमैरिड वुमेन है उनका तो नंबर हो ही सकता है ना. इवन थर्ड ऑप्शन कैन नॉट जस्टिफाई कि 20 में से ओनली वन वुमेन क्यों है. अब चलो मान भी लेते हैं कि वर्क कल्चर ही ऐसा है या वर्क जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, बट स्टिल अगर मैरिड वुमेन के लिए दिस इज अनअट्रैक्टिव, बट एटलीस्ट फॉर दी अनमैरिड वुमेन एटलीस्ट दे शुड बी गुड in good numbers, so even that is not the case. So इसीलिए even third is not correct. The only correct answer is fourth option. When the Supremo Company says all job applicants who were rejected had fewer qualifications than those accepted. तो fourth option कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है जिनको भी हमने रिजेक्ट किया उनकी क्वालिफिकेशंस जिनको हमने एक्सेप्ट किया उससे कम है. इसका मतलब है we have focused only on qualifications and we did not focus on gender bias.
तो फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं सुप्रीमो को बचा लेता है, फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं सुप्रीमो को डिफेंड करता है, इजंट इट? और फोर्थ ऑप्शन तो बहुत स्पष्ट कह रहा है, ये कहता है स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हमने जिनको सेलेक्ट किया देयर क्वालिफिकेशंस आर हायर देन द पीपल हु गॉट रिजेक्टेड, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बायस? ओके, जिनको हमने रिजेक्ट किया अगर उसमें वुमेन भी है, उसकी क्वालिफिकेशन ही पुअर है ना, हमने इसलिए थोड़ी रिजेक्ट किया कि शी इज अ वुमन, हमने इसलिए रिजेक्ट किया बिकॉज हर क्वालिफिकेशन इज पुअर, दैट इज व्हाट द फोर्थ ऑप्शन सेज, तो इसीलिए दिस गिव्स द बेस्ट डिफरेंस एंड फोर्थ बिकम्स द करेक्ट आंसर, एग्रीड? डन। चलिए अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं एंड दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमेशा पहले पढ़ लो, which of the following can then explain the discrepancy, which of the following can then explain the discrepancy? Discrepancy का मतलब है possibly there would be some paradoxical situation, some inconsistency, या discrepancy के लिए कई बार क्वेश्चन में एक और वर्ड आता है anomaly, yes even this is possible, anomaly इसका भी मतलब होता है discrepancy। चलिए अब मुझे बताएंगे जो भी स्टूडेंट्स लाइव है, if you people can read the question and give the answer, I would appreciate it. चलो स्टार्ट करें, डन। In 2009, there was a sharp increase in the number of people who were reported to have died in the country during the first week of the year compared with the first week of the previous 10 years. देखो students, interesting line. In 2009, there was a sharp increase in the number of people who were reported to have died in the country during the first week of the year compared with the first week of the previous 10 years. There seems to be no reason to explain this disproportionately high number of deaths, especially because the reports were widespread in the country and there was no epidemic spreading through the country, spreading through the country at that point in time. Moreover, most of the deaths were not among the young and could not even be attributed to binge drinking in celebration of the new year. अब स्टूडेंट्स अब देखो 2009 का जनवरी के महीने का पहला हफ्ता, पिछले 10 सालों के मुकाबले इस साल नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई है और पैराग्राफ कहता है ऐसा कोई विजिबल रीज़न भी नहीं है, ना तो कोई एपिडेमिक है और ये जो डेथ्स हैं इनमें ऐसा भी नहीं है कि यंगस्टर्स की डेथ ज़्यादा हुई है, इसमें ओल्ड एज पीपल की ही डेथ ज़्यादा हुई है। तो यंगस्टर्स की ज़्यादा होती तो चलो ये भी समझ लेते कि इस साल ठीक है खूब शराब पार्टी हुई तो पॉसिबली बिकॉज ऑफ दैट दे डाइड, ऐसा भी कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड? तो अल्टीमेटली आखिर इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि 2009 के फर्स्ट वीक में आपके डेथ तो ज़्यादा हुई है, तो व्हाट इज द पॉसिबल रीज़न? तो अमंग द 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन इस विजिबल डिस्क्रिपेंसी को, इस बहुत और सी सिचुएशन को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है, हमें वो ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है? अब चलो स्टूडेंट्स अपन कंपेयर करते हैं। Coming on the first one, the government announced in 2008 that the state taxes payable by the heirs on someone's death would be abolished effective from the new year. अब स्टूडेंट्स आप देखो 2008 में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि 2009 की बिगनिंग से स्टेट टैक्सेस अबॉलिश हो जाएगा। हालांकि स्टेट टैक्सेस व्हाट डज इट मीन, इसके बारे में स्टूडेंट्स इसी में दे रखा है कि किसी की डेथ होने पर उसकी प्रॉपर्टी जब आपको मिलती है तो उसमें से जो टैक्सेस पे किए जाते हैं तो दे आर नोन एज स्टेट टैक्सेस। नाउ यू पीपल जस्ट अंडरस्टैंड, 2008 में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि 2009 नेक्स्ट ईयर से स्टेट टैक्सेस विल बी अबॉलिश्ड। इसका मतलब है किसी की डेथ हो जाए 2009 में तो उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके हेयर्स को मिल जाए तो दोज हेयर्स विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस, दैट इज द पॉइंट। अब स्टूडेंट्स कुछ बत्ती जली, लॉजिक समझ में आया? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन ओनली। व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? बिकॉज जैसे ही 2008 में सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया तो कई सारे लोग पॉसिबली जिनकी डेथ दिसंबर 2008 में हुई होगी, ओके दिसंबर 2008 में हुई होगी, उन्होंने स्टूडेंट्स पॉसिबली इस डेथ को डिक्लेयर ही नहीं किया, बताया ही नहीं, एंड दे सेड पॉसिबली कि जो डेथ है
वो दिसंबर 2008 की जगह जनवरी 2009 ठीक है फर्स्ट वीक में हुई है, so that the heirs can avoid themselves, can make arrangements for themselves so that they can be relieved from paying the estate taxes. That is the possible reason. That is the possible reason आखिर जनवरी के फर्स्ट वीक में इतनी नंबर ऑफ डेथ ज्यादा क्यों हुई है? तो नंबर ऑफ डेथ ज्यादा नहीं हुई है, नंबर ऑफ डेथ तो उतनी हुई है, पर जिनकी डेथ पॉसिबली नवंबर दिसंबर में हुई उन्होंने भी उन डेथ्स को छिपाया और उसे डिस्क्लोज किया इन द मंथ ऑफ जनवरी 2009 टू अवॉइड पेइंग estate duties. So that is the possible reason because of which this anomaly happened. So anyway, students, here the best option happens to be first one. I think people are able to understand it. Point समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? एक बार मैं फाइनली सम अप कर देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन को। भाई सरकार ने जैसे अनाउंस किया कि 2009 के बिगनिंग से स्टेट ड्यूटीज, स्टेट टैक्सेस अबॉलिश हो जाएंगे, तो कई सारे लोगों ने जिनके पेरेंट्स की डेथ पॉसिबली दिसंबर 2008 में हुई होगी, नवंबर में हुई होगी, they did not disclose it. They kept it secret. And January 2009 फर्स्ट वीक में सबने बताया भाई ये पेरेंट्स की डेथ हो गई, so that they can avoid paying the estate taxes. So that can be one possible reason why there was a sudden spurt in the number of deaths in the first week of January 2009. तो 10 सालों में कभी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा 2009 में हुआ। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, इसका जो आंसर है, द आंसर विल नॉट बी देयर इन द पैराग्राफ इटसेल्फ. You will have to apply some logic. You will have to apply some common sense. You will have to use some extra knowledge. You will have to connect the dots. And then only students it is possible to give the correct answer here. Okay? Second option भी पढ़ लेते हैं. Astrologists predicted that 2009 was a good year to die. What rubbish. Third, the statistic is an anomaly that has no logical explanation. इसका मतलब है कोई explanation ही नहीं है. This itself is wrong. And the price of some cancer drugs and chemotherapy increased by 10% in January 2009, making treatment more expensive than before. Students, क्या दवाइयों के प्राइस बढ़ जाने से डेथ बढ़ गई? ठीक है, कुछ हद तक. But anyway, students, this is not correct. अच्छा, why not C? C कहता है the statistic is an anomaly that has no logical explanation. आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which of the option can give the explanation? और सी कहता है कि ये जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, दैट इटसेल्फ इज एन एनोमली और इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता. जबकि मैं तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अंडरस्टैंड, जब मैं फर्स्ट ऑप्शन में आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, व्हाई विल वी मार्क सी एज द करेक्ट आंसर? एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल एंड दैट इज गिवन इन द फर्स्ट वन एंड दिस इज लॉजिकली करेक्ट ऑल्सो. तो इसीलिए वी विल नॉट गो विद सी एंड वी विल मार्क ए एज द करेक्ट आंसर. इज इट ओके? समझ में आया? तो अब स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए. कल मैं कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और स्टूडेंट्स हर वीक कम से कम 2 या 3 लाइव सेशंस वी पीपल आर गोइंग टू हैव, जहाँ पर वी विल जस्ट शेयर द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आई मस्ट अगेन से, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द कंप्लीट आइसबर्ग, you will have to become the part of a Mission IIM Possible batch. I welcome all the students despite all the efforts. Still, if the people are not able to develop a good confidence and if they are not able to develop a good competence in VRC, become the part of our batch Mission IIM Possible. At the same time, किसी student को लगता है कि I want to join only for VRC, most welcome. There is a separate course on VRC also. So yes, जो भी option आप opt करना चाहते हैं, you people can. Okay? See you tomorrow once again with new sets of questions and new concepts, new clarity. So thank you very much. Okay, Harsh? चलिए, धन्यवाद सभी को. See you tomorrow. Okay. If you have got any question, you can ask. मैं हर सेशन के बाद कुछ ओपन हाउस रखूंगा. अभी क्योंकि हमने जस्ट लाइव स्टार्ट किया है, तो इसीलिए पॉसिबली लाइव में स्टूडेंट्स कम होंगे, और इवेंचुअली जैसे ये रेगुलर फिनोमिना बनेगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन करेंगे. हर साल मैं देखता हूँ, देखिए लास्ट ईयर हाईएस्ट हम लोगों ने 70 का नंबर टच किया था हमारे लाइव सेशंस में. And this bar students, this number has to cross 100. Very soon we are going to achieve that also. Thank you everyone.